Good morning, students. We were covering the fourth lesson of history, and today we will try to cover the topic. I hope the board is visible. Yes, ma'am. बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. See, Yes, ma'am. yesterday we tried to study that who are the tribals and where they are. Okay, and when we studied about the tribals, we came to know that these are the people who usually dwelled in the forest and the hilly areas. Okay, and there are 4 geographical locations where these tribal people they are found in our country. The tribals, they are also known as the Adivasis. आदिवासी शब्द का मतलब होता है the original inhabitants of the forest. Okay, and we saw that the Adivasis they were mostly found in 4 geographical locations. Okay, they are mostly found in these areas: the north and the northeastern part of the country, the central and the southern. And they are now today we will try to cover the topic. Okay, how did tribal groups live? उनकी जीविका का स्रोत क्या था? ओके, वो किस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और वो किस प्रकार की एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व थे? व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे वर इन्वॉल्व इन? Okay, the first activity that we came to know was what? Okay, some of these people they were jhum cultivators. Some were jhum cultivators. Okay, if you have your book, you can look at your book. What is jhum cultivation? I hope you have understood jhum cultivation. कल मैंने समझाया था. What is jhum cultivation, बेटा? The field are ploughed and seed are sown. What happens in jhum cultivation? Jhum cultivation is similar to shifting cultivation. Okay? ये लगभग जो है एक ही है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर आप पढ़े होंगे क्लास 7 के बुक में इन द चैप्टर होम्स एंड द गोंड्स. ओके, so we know that in shifting cultivation the forest area is cleared. Okay, the tree tops they are cut and they are burned. Okay, and when they are burned, जब उनको जला दिया जाता है तो राख जो तैयार हो जाती है पेड़ों के जलने से. ओके, उसी राख में जो है क्या कहते हैं फसल लगाई जाती है. ठीक है ना? एज फार एज झूम कल्टीवेशन इज कंसर्न वी सी दैट the seeds are scattered. Okay, the seeds are scattered instead of sowing. ठीक है ना? तो बीज जो फसल के जो बीज होते हैं उनको जो है बोने के बजाय जो है उनको स्कैटर कर दिया जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज? जिसमें सीड्स को हम स्कैटर करते हैं वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस तरीकों को क्या कहते हैं हम लोग? नोबडी? इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट. ओके, इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट. ये अक्सर जो है आपके सवाल में जो है पूछा जाता है कि ओके झूम कल्टीवेशन में सीड्स को कैसे जो है प्लांट इस्तेमाल किया जाता है. सो वी सी दैट द सीड्स दे आर स्कैटर्ड ओके इंस्टेड ऑफ सोइंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रॉडकास्ट. ओके, और देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? ओके, द कल्टीवेशन इज डन ऑन द प्लॉट फॉर अ फ्यू इयर्स. ओके, सपोजिंग okay, the field is utilized for growing crops. Okay, till the fertility of the soil. Okay, जब तक जो है मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता जो है वो मेंटेन है. ठीक है, तब तक जो है वहां पे फसल जो है उगाया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी ईयर्स? फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 years. Okay, so what we see is okay, in shifting cultivation we see that the field is utilized for growing crops till the fertility of the soil is maintained. For example 10 to 15 years. Okay, after that the field is left fallow.
After that, the field is left fallow. Okay, fallow for some time. ये ऐसा क्यों किया जाता है? Can anybody tell me why the field is left fallow for some time? Aman Ansari, can you hear me? Aman? Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बताओ, जमीन को क्यों खाली छोड़ दिया जाता है? कुछ सालों के लिए जो है जमीन को कुछ खाली क्यों छोड़ा जाता है? अर्पिता? मैम ताकि वो फर्टाइल हो सके। ओके, Yes, ma'am. व्हाट इज द आंसर अर्पिता? मैम लगातार बोएंगे तो वो बंजर हो जाएगा। बंजर तो नहीं होगा, उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। द फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। ओके, सो वी लीव द लैंड, ओके, वी लीव द फील्ड, ओके, फैलो। ठीक है ना? फैलो का मतलब, ओके, इट मीन्स फील्ड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम एंड वी लीव इट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो दैट द सॉइल रिगेन्स इट्स फर्टिलिटी। ठीक है ना? जो भूमि है वो वापस जो है अपनी उर्वरक क्षमता को जो है वो हासिल कर ले, इसलिए जो है उसको कुछ समय के लिए जो है खाली छोड़ दिया जाता है। ओके, नाउ व्हाट वी सी इज, ओके, दीज पीपल, द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे कहाँ पे थे? द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे, ओके, मेनली रिसाइडेड इन द फॉरेस्टेड एरियाज, या तो ये जंगलों में निवास कर रहे थे। ओके, द फॉरेस्ट एरियाज और द हिली ट्रैक्स, या तो पहाड़ों पे ये वो ओके इस प्रैक्टिस को जो है वो ओके कर रहे थे। ठीक है ना? So we see the shifting cultivators, they mainly resided in the forest areas, okay, and the hilly tracts, ठीक है ना? तो पहाड़ों पे आप देखते हैं कि पहाड़ों पे जो है जंगल रहते हैं। ठीक है ना? तो ये जंगलों के बीच में जो है ये इस प्रकार की जो है ये खेती करते थे। डू यू थिंक शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज इन फेवर ऑफ द एनवायरमेंट? What do you think? Yes, students. अभिषेक गिरी, Yes, ma'am. क्या आपके हिसाब से शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर्यावरण के लिए लाभदायक है? Is it beneficial? हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने में क्या ये सहयोग दे रहा है? यस मैम। How? Yes, ma'am. How? बिना सोचे जवाब दे दिए हो। हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? ओके, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ओके, इस प्रकार की खेती अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जंगलों को साफ करना पड़ रहा है, और जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। ओके, there are rare varieties of plants, there are rare varieties of species, okay, in the forest. And when you are practicing this shifting cultivation, what is happening? Okay, these species they get disturbed. ठीक है ना? उनका जो है जीवन जो है वो प्रभावित होता है, और अगर हम ऐसे ही करके जंगलों को साफ कर करके खेती करेंगे तो क्या होगा? ओके, द वाटर साइकिल विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। ठीक है ना? और वायु में जो है CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। पेड़ पौधों को जब आप जलाते हो, आप देखते हो कि गेहूं का फसल जब लगाया जाता है और जब फसल काट लिया जाता है उसके बाद जो है पौधों को जला दिया जाता है, तो उस दौरान कितना प्रदूषण होता है? प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? सो वी सी दैट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, okay, shifting cultivation is not in favor of, okay, the protection of the environment. It is against, ठीक है ना, पर्यावरण के खिलाफ है। अगर हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की खेती को रोकना होगा। ओके, और चूंकि ये ट्राइबल पीपल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो ये इस प्रकार की ये लोग खेती करते हैं। ओके, नाउ सी
The second one is somewhere hunter gatherers. Okay, somewhere hunter gatherers. Now if you go through this heading, what do you see? What does the word hunting gathering means? आपको क्लास 6 की बुक याद है? क्लास 6 की हिस्ट्री बुक याद है? You remember the Narmada Valley? Yes, ma'am. The banks of river Narmada. हाँ, आपको पता होगा कि नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है ना, 8000 वर्ष पूर्व वहाँ के नर्मदा नदी के किनारे जो लोग बसे थे, okay, the people who were residing near the banks of river Narmada, they were what? They were skilled gatherers. Okay, they were skilled hunters and gatherers. ठीक है ना, वो लोग कुशल संग्राहक और आखेटक थे. ठीक है ना, वो अपनी जीविका जो है, जो जंगलों में जो फल फूल जो कुछ भी पाए जाते थे उससे वो अपना गुजर बसर करते थे और वो अच्छे शिकारी भी थे. ओके, सो वी सी दैट as far as these tribal people are concerned, we see, okay, that the Khons, ठीक है ना, the Khons are a community of people living in the forest of Orissa. Okay, the Khons are a community of people, okay, tribals living in Orissa. ठीक है ना, और ये खॉन्स ट्राइब जो है, अगर आप इन खॉन्स को देखेंगे, you will see they regularly went out on collective hunt and then divided the meat among themselves. Okay, these people, they were skilled hunters. They were skilled hunters. Okay, and whenever they went for hunting, जब भी ये लोग शिकार करने जाते थे, okay, they went for hunting. What they used to do? Okay, they used to share. They used to, okay, share the meat. Okay, तो जो कोई भी जानवर का वो शिकार करते थे वो आपस में उसको बांट लेते थे. ठीक है ना, तो ये जो खॉन्स जो थे, ओके, ये लोग स्किल्ड हंटर्स थे. ओके, they were the skilled hunters. Okay, and whatever they hunted, they divided the meat among themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of sal and mahua. ठीक है ना, महुआ के फूल आप लोग देख चुके होंगे. हाँ, महुआ का फल कैसा होता है? किस रंग का होता है महुआ का फल? Green, yellow. हाँ, येलो. हाँ, क्रीमी येलो, वाइट व्हाइट होता है, क्रीम कलर का होता है. महुआ एंड साल, क्रीम कलर ओके, महुआ एंड साल वेर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल. ठीक है ना, ओके, तो ये लोग जो है महुआ और साल को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, उससे तेल निकालने के लिए. ठीक है ना, उससे तेल निकालने के लिए. और ऐसा माना जाता है कि जो महुआ के जो फल होते हैं, ठीक है ना, उनको अगर आप सुखा के और बहुत अच्छे से अगर आप कंजर्व करके रखते हो तो विंटर मंथ्स में वो बहुत लाभदायक होते हैं. ओके, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स जिस किसी बच्चे को जो है रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, a person suffering from cold, a person suffering from, okay, respiration problem, that person can utilize the, okay, वो उस चीज को कंज्यूम कर सकते हैं, सुखाए हुए ड्राइड महुआ को कंज्यूम कर सकते हैं और उसमें उनको राहत मिलती है. ये एक आयुर्वेदिक उपचार होता है. ठीक है ना, तो वी सी महुआ एंड साल वेर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल. ओके, एंड कुसुम एंड पलास, कुसुम एंड पलास, कुसुम एंड पलास वेर यूज्ड टू, ओके, मेक कलर. ठीक है ना, इनसे जो है कलर तैयार किया जाता था. कुसुम और पलाश का जो है इस्तेमाल किया जाता था. ओके,
कलर तैयार करने के लिए, और इस कलर का प्रयोग करते थे वो लोग अपने जो कपड़े थे कपड़ों को रंगने के लिए, और जो जानवरों की जो हाइड्स निकालते थे, जो खाल निकालते थे, उसको कलर करने के लिए, इन ऑर्डर टू कलर द क्लोथ्स एंड इन ऑर्डर टू कलर द लेदर. ओके, दे यूज द फ्लावर्स ऑफ कुसुम एंड पलास. पलास के जो फूल होते हैं वो वेलवेटी कलर, वेलवेटी टच के होते हैं. ओके, बसंत पंचमी के दौरान जो है ये फूल खिलते हैं, पलास के फूल, स्पेशली इन बंगाल. ओके, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट फ्लावर्स ऑफ माँ सरस्वती. ओके, एंड इट इज ऑफर्ड टू माँ सरस्वती ड्यूरिंग बसंत पंचमी. ठीक है ना, बसंत पंचमी में ये फूल खिल जाते हैं और माँ सरस्वती को अर्पित किया जाता है ये फूल, पलास का फूल. I hope you people have seen it. Okay, if not I will send you the image, go through it. Okay, and we see that these people, okay, the tribals, they were surviving by what? By hunting, and they were also, okay, the tribals, okay, on their livelihood by collecting fruits, okay, and roots of plants from the forest. When you'll go through your civics chapter, ठीक है ना, आप अपने civics book में एक chapter पढ़ेंगे, okay, marginalization. जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्राइबल्स हैं इनको जो है, ओके, जंगलों की सबसे ज्यादा नॉलेज होती है. ओके, दे हैव द मैक्सिमम नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट. ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग देख के ही बता सकते हैं कि कौन से पौधे जो है विषाक्त हैं, कौन से खाने योग्य है, ओके, और किसकी क्या क्वालिटी है. ओके, दे हैव rare information about the forest products, okay, and about the plant species and the animals that are residing in the forest. Okay, so these people are highly skilled, what, they are highly skilled hunters and gatherers. Okay, now if we go through the चैप्टर वी विल कम अक्रॉस कि अब हम कह रहे हैं कि ये लोग तो कुशल जो है आखेटक है, ओके, और संग्राहक है. ठीक है ना, तो क्या उसी से जो है इनकी जीविका जो है वो कवर हो जा रही है? ऐसा नहीं है. ओके, व्हाट दे डिड, दे एक्सचेंज देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है ना, अनाज तो हर किसी के लिए जरूरी है, तो वो क्या करते थे, ओके, दे यूज्ड टू एक्सचेंज देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स with outsiders, okay, outsiders like traders. ठीक है ना, जो व्यापारी लोग जो है गांव देहात में घूमते थे, ओके, अनाज लेके, उनके साथ जो है वो उनसे जो है वो अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है एक्सचेंज करते थे. दे एक्सचेंज देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विथ आउटसाइडर्स लाइक ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, ओके, फॉर प्रोक्योरिंग, ओके, फूड ग्रेन्स. ठीक है ना, अनाज के लिए जो है ये लोग जो है अपनी चीजों को जो है एक्सचेंज करते थे. अब इफ यू रिमेंबर योर क्लास 7th बुक, ओके, ट्राइबल सोसाइटीज, इन दैट आल्सो यू केम अक्रॉस द, ओके, द टॉपिक दैट द नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते थे वो क्या करते थे, वो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को, ओके, एंड मीट, दे यूज्ड टू एक्सचेंज विद द, ओके, सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, जो खेती कर रहे थे लोग, उनके साथ जो है वो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को, अपने मीट को जो है एक्सचेंज करके उनसे फूड ग्रेन्स और बाकी सारी जो है जरूरत की चीजें जो है वो लोग लेते थे. ओके, नाउ व्हाट वी सी इज, ओके, ओनली द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज फार एज द सर्वाइवल इज कंसर्न. ठीक है ना, तो एक समय ऐसे आता है, अगर आप अपने लास्ट 2 years की अगर बुक को आप उठाते हैं, बी इट हिस्ट्री, बी इट, ओके, civics, you come across many instances where you see that a time comes when the forest products come to an end. ओके, हर चीज जो है अपने अपने सीजन में होता है. ओके, और जैसे ही उस चीज का जो है सीजन खत्म हो जाता है, आप देखते हैं कि वो, ओके, वस्तु भी खत्म हो जाती है, बी इट द फ्रूट्स और द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. सो
A time comes when they are left with nothing. So what they used to do, the tribals, they used to move outside. Okay, when the forest products were consumed, okay, when the forest products, okay, were about to finish, okay, the tribals, what they did, the tribals, they moved, okay, the tribals moved to distant places. ठीक है ना, वो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे वो भ्रमण करते हैं. ओके, डिस्टेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ व्हाट, इन सर्च ऑफ फूड, ओके, एंड बेटर लाइवलीहुड. ठीक है ना, तो जीवन के जो है अच्छे जीने के लिए जो है अच्छी सुविधाओं की तलाश में, खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में जो है ये ट्राइबल्स जो हैं, ओके, ये दूर दूर जगहों पे जो है ये लोग भ्रमण करते हैं, वहां पे जाते हैं और जाके जो है अपनी जीविका के स्रोत जो है ढूंढने का जो है ये लोग प्रयास करते हैं. सो व्हाट वी सी, ओके, their life is dependent upon the tribe, upon the traders and the merchants. अगर traders और merchants जो है वो नहीं आ रहे हैं, okay, तो they were not able to procure food grains from themselves, for themselves. If you go through figure 1, अगर आप figure 1 को देख रहे हैं तो आप देखिए women of the, okay, Dongriya Kanda tribe in Orissa wade through the river on the way to the market. Page number C, page number 39. पेज नंबर 39 में फिगर 1 दिया गया है. इसमें महिलाएं जो हैं अपने सिर के ऊपर जो है सामान लेके जो है, ओके, जा रही हैं बाजार में बेचने के लिए, नदी को क्रॉस करके वो जा रही हैं, ओके. और ये महिलाएं क्या करती हैं, ये महिलाएं अपने सामान को जो है बेच देती हैं और बेच के जो उनके पास जो पैसा होता था, ठीक है ना, वॉट एवर दे अर्नड आफ्टर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, they used to utilize that money for buying, okay, other necessary items for their survival. Now if you see figure 2, okay, Dongriya Kanda women in Orissa take home pandanus, leaves from the forest to make plates. ठीक है ना, पत्तल के जो प्लेट पाए जाते हैं, ठीक है ना, भोजन के लिए, and they are very eco friendly. Those plates were prepared by these women for consuming food. Okay, केवड़ा के जो पत्ते होते हैं, ठीक है ना, pandanus is somewhat similar to, ओके, केवड़ा के जो पत्ते होते हैं उसी से जो है मिलते जुलते ये होते हैं. एंड दिस वुमेन, दे आर कैरिंग देम ओवर देयर हेड टू मेक प्लेट्स फॉर कंज्यूमिंग द फूड आइटम्स. ओके, नाउ व्हेन यू गो थ्रू योर चैप्टर यू कम अक्रॉस द बाइगास. नाउ सी हु आर दीज बाइगास. ओके, तो देखो ये ट्राइबल्स जो है ये, ओके, जंगल जो है इनके परिवेश है, ये इनका जीवन जो है इन जंगलों पे जो है निर्भर कर रहा है. ओके, जंगल में जो कुछ भी पर्याप्त मात्रा में है वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी जीविका के लिए. और जब देखते हैं कि ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है तो ये बाहर की तरफ मूव करते हैं काम की तलाश में, बेहतर जीविका की तलाश में. ठीक है ना, एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन डूइंग पेटी जॉब्स. बट as far as the Baigas were concerned, okay, Baigas are also a kind of tribe. See, the Baigas were highly what? These people, the Baigas of central India, they were reluctant to do work for others. These Baigas, they are found in central India, okay, and these Baigas, okay, they were reluctant. ये बहुत ही ये स्वाभिमानी लोग थे, ठीक है ना, आत्मसम्मान इनका कुछ ज्यादा ही था. ओके, और ये दूसरों के लिए जो है ये काम नहीं करना चाहते थे. दे वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स, टू डू वर्क फॉर अदर्स. ओके, जैसे कि बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो अपनी जीविका के लिए जो है, जीवन यापन के लिए जो है दूसरों के यहाँ जो है एज लेबरर्स काम करने को तैयार हो जाते थे. बट ये बाइगास जो थे सेंट्रल इंडिया के, ये किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते थे. ओके, देयर मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल वेर द फॉरेस्ट. दे नाइदर, ओके,
were interested in leaving the forest, and it was against the dignity. It was against the dignity of a बायगा. ठीक है ना, ये उनके आत्मसम्मान के खिलाफ था. It was against the dignity of a बायगा. Dignity means self-respect, okay, of a बायगा to work as laborer. मजदूर के रूप में जो है काम करना उनको एकदम ही मंजूर नहीं था. So you see, okay, they are maintaining their tradition, okay. But as far as the role of the traders and the money lenders are concerned, okay, try to understand. आप जो है इन चीजों को जो है थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करिए, okay. When we are going through the chapter and when we say the heading of the chapter is tribals, Dikus, okay, and the vision of a golden age. तो ये Dikus का मतलब क्या होता है? Dikus का मतलब होता है outsiders, ठीक है ना. हर वो व्यक्ति जो है बाहर से जो आए हैं और जो आके उनके परिवेश में जो है दखल अंदाजी कर रहे हैं, ओके. तो यहाँ पे हम शुरुआत में ही who are the outsiders? If you look at the outsiders, we see it is the traders and the merchants, okay, who are the outsiders. My voice is audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You people are able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So you see, okay, these money lenders, when we are talking about the Dikus, okay, as far as the Dikus were concerned, the Dikus were not only the Britishers, the Dikus were also the money lenders and the traders, okay. The tribals, okay, they were exploited. They were exploited by the money lenders and the traders. ठीक है ना. ये जो मनी लेंडर्स थे और जो ट्रेडर्स थे, ये क्या कर रहे थे? ये अपनी वस्तुएं जो है ऊंचे दामों में जो है इन ट्राइबल्स को बेच रहे थे, ओके. दे वर सेलिंग ऑफ देयर, ओके. द ट्रेडर्स ऑफन, okay, sold their goods at higher prices, okay. And you will see as What is Baigas? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? Baigas. बायगास. बायगास क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा. द बायगास जो है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है ना. वो भी एक जो है आदिवासी समुदाय है, ठीक है ना. जितने भी आदिवासी हमारे देश में हैं, ओके, उनमें एक बायगास भी जो है एक समुदाय है, ठीक है ना. इट इज ऑल्सो अ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है ना. और ये बायगा लोग जो थे, ये किसी और के लिए काम करना इनको मंजूर नहीं था, उनके आत्मसम्मान के खिलाफ था, ठीक है ना. बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे. वो अपना जीवन यापन या तो जंगलों में शिकार करके गुजर बसर करते थे, या तो जंगलों में जो कुछ भी पर्याप्त मात्रा में था उसको जो है वो गैदर करके उसका इस्तेमाल करके करते थे. बट दे वर नॉट रेडी टू वर्क फॉर अदर्स, ठीक है ना. वो किसी और के लिए काम करना नहीं पसंद करते थे. अब ये देखिए, ये जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है ना, इनका शोषण करते थे ये मनी लेंडर्स जो थे और जो ट्रेडर्स थे. ये अपनी वस्तुओं को जो है ऊंचे दामों में इनको बेचते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, ठीक है ना. सिंस द ट्राइबल्स दे वर नॉट लिटरेट पीपल, सो दे गॉट अ चांस टू अर्न प्रॉफिट. ये जो ट्रेडर्स हैं और मनी लेंडर्स हैं, ये क्या करते हैं? अपनी वस्तुओं को जो है ऊंचे दाम में जो है इन लोगों को बेचते हैं, ठीक है ना. Okay, and they were earning huge profit by selling their goods. Moreover, ऐसे बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको कई बार जो है पैसे की जरूरत पड़ती थी. ओके, सो व्हाट वी सी, द मनी लेंडर्स, ये जो साहूकार लोग हैं, ठीक है ना, द मनी लेंडर्स प्रोवाइडेड लोन टू द ट्राइबल्स, ठीक है ना. उनको कर्ज देते थे, और जब भी कर्ज देते थे तो ओके हायर इंटरेस्ट लेते थे. टू द ट्राइबल्स
at higher rate of interest. ठीक है ना? ब्याज का जो दर होता था वो ज्यादा होता था. तो ओके, इसीलिए जो है ये जो ट्राइबल्स हैं इनको मनी लेंडर्स को और ट्रेडर्स को पसंद नहीं करते थे. They considered themselves as outsiders. Okay, so this is the starting. This is the starting where you will have to understand where, okay, why the traders, the money lenders and the Britishers, they were considered as outsiders. Okay, the tribals considered, ठीक है ना, considered these traders, merchants and money lenders, merchants and money lenders, ठीक है ना, as outsiders. Ma'am, video is not clear. My video is not clear, but I can see you people. I can very well see you. सही मैम है, क्लियर है, मैम सही क्लियर है, है. क्लियर है. सब कुछ सही है बेटा. स्पॉटलाइट Yes, तो ma'am, है ही सही है. है. यस मैम, सही है. आप अपने मोबाइल को चेक करिए, मे बी सम प्रॉब्लम देयर. ओके, यशराज, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं है. यशराज बेटा, अगर मेरा वीडियो जाएगा ना तो यहाँ पे पता चल जाएगा मुझे, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे पता चल आवाज आ जाएगा. रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है. हाँ, वो प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है कभी कभी. आ अब आ गया. रहे, अब आ रहे हैं ना, अब आ रहे हैं, अच्छा क्या है? आ रहे जा रहे. इट इज कमिंग, इट इज गोइंग. मैम आ गया. आ गया फिर चला भी गया. ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पे, समझ गए? जब भी आप, नो मैम, आप तभी से दिख रही हैं मैम. ठीक है ना. ओके, नाउ पे अटेंशन एट द क्लास. नाउ लेट अस कवर द थर्ड टॉपिक, सम हर्डेड एनिमल्स. ठीक है ना, कुछ जो ट्राइबल्स थे वो क्या करते थे, वो जानवरों को रखते थे. ठीक है ना, वो जानवर चराते थे, वो चरवाहे थे. ओके, सो यू सी, यशराज हाथ क्यों उठाए हो भाई? व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? यशराज, see some of the tribals they herded animals. ठीक है ना. ओके, अगर आपको time and again I am giving you reference of class 7's book. Okay, and you see that the one Gujars of Punjab and the Labadis of Andhra Pradesh. ठीक है ना. ओके, देखो, have a look at your book. Pay attention to your book. Page number 41. When Gujars of Punjab hills. Okay. Then you have Labadis of Andhra Pradesh. Okay. ये क्या है? ये जो है ट्राइबल कम्युनिटी है. ठीक है ना. जो वन गुज्जर जो थे पंजाब हिल्स के और जो लबादीस थे आंध्र प्रदेश के. ठीक है ना, ये क्या कर रहे थे? ये वे, ओके, दीज वेर व्हाट? दे वेर, ओके, cattle herders. The one Gujars of Punjab and Labadis of Andhra Pradesh, they were cattle herders. Okay, ये जो है गाय रखे थे लोग, गाय भैंस रखे थे लोग, और उनके जो बछड़े होते हैं उनको जो है ये लोग रखते थे. These were the herders. Okay, and if you see that the Gaddis of Kullu, the Gaddis of Kullu were shepherds and the Bakarwals of Kashmir reared goats. ठीक है ना. तो बकरवाल जो कश्मीर के हैं वो बकरियों को पालते थे. ठीक है. गद्दीज ऑफ कुल्लू वो चरवाहे थे, वो शेपर्ड्स रखे, दे वर शेपर्ड्स मतलब वो लोग भेड़ रखते थे. ठीक है ना. ओके, और इनके बारे में जो है हम अगले साल की जो बुक है उसमें हम पढ़ेंगे. नाउ सो वी सी दैट द ट्राइबल्स, ओके, द ट्राइबल्स दे आल्सो हर्डेड एनिमल्स. The tribals were, okay, herded animals. Why do you think they herded animals? किस लिए वो जानवरों को रखते थे?
जानवरों से क्या मिल सकता है उनको? मिल्क, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। शेल्टर, Who is this? Who is this telling fertilizer? हाँ? Milk and meat products. ठीक है ना? They were herding the animals for milk and meat products. ठीक है ना? उनके जो दूध है, ओके, दूध का वो लोग इस्तेमाल करते थे, और बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे वो जो है उनके जो मीट है, मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ओके, they used to sell the milk and the meat products and they used to earn their livelihood. Okay, now listen children, okay, I'll have to end up the session here. Okay, Sanjay sir is waiting for his maths class. Okay, Thank you, ma'am. we will continue tomorrow. Thank you, ma'am. Sorry for the ma'am. sorry for the Bye, ma'am. inconvenience, beta. Okay, Thank you, ma'am.